Good morning, my dear children. So, we already completed with the chapter solution. I'm very happy and I really thankful to my children, those who have cooperated me to complete that chapter very successfully. And from today, we are going to start new chapter, that is electrochemistry. Have you think that something is hidden in this name electrochemistry? What this name is trying to say? Electro. Is this electro is related to something? Electricity? Yes or no? So electricity related with chemistry, that is electrochemistry, means in which we are going to study about the conversion of energies which take place in chemistry. Okay, so today topic is introduction and electrochemical cell introduction only. So here the definition: the branch of chemistry that deals with conversion of chemical energy into electrical energy. It means some reaction is going on in this container, that is chemical change, and this chemical change will give some chemical energy. And by this chemical energy, how we get electrical energy, that is called the conversion of chemical energy into electrical energy. So this branch of chemistry means electrochemistry deals with this also. And second one, conversion of electrical energy into chemical energy. अब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट करने का काम करती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. I think there will be inverters in at your home, so you are familiar with it. But do you think that battery which is having some chemicals, it charged and then supply electricity at your home when electricity is not there? This is the one thing, that is conversion of chemical energy into the electrical energy. क्या होता है इन दिस बैटरी? इट चार्ज्ड, ये पहले चार्ज होती है और जैसे ही ये चार्ज होती है, एक बॉक्स होता है जो इसका चार्जर होता है, बाय दिस बैटरी गेट चार्ज्ड. और जैसे ही लाइट पावर कट होता है, यहाँ से जो केमिकल एनर्जी बन रही होती है, क्रिएट हो रही होती है, वो केमिकल एनर्जी रन करती है और क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी, पावर सप्लाई होने लग जाता है, फिर से इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है. तो दिस इज द थिंग दैट कन्वर्जन ऑफ electrical energy take place here. Okay, now we are moving forward that according to thermodynamics, chemical reactions are of two types. Yes, we already studied about this, ma'am. That is spontaneous and non-spontaneous. Spontaneous are reactions which happen by their own, and non-spontaneous are reactions which need some external thing, external efforts to held. So the conversion of chemical energy into electrical energy is an spontaneous reactions. मतलब ये अपने आप होता है, ये हमें करवाना नहीं पड़ता. But the conversion of electrical energy into chemical energy is non-spontaneous. इसको हमें करवाना पड़ जाता है. कैसे? Here you see that I have taken one beaker, this and attached one salt bridge in it, have solution of ZnSO4 and CuSO4, and have an electrode also of Zn and Cu. Okay, so what happened, जब ये सिस्टम बनेगा and I connected with 1 voltmeter, जब बनेगा तब क्या होगा, what happened, तब क्या होगा कि इसके अंदर ऑटोमेटिकली जिंक स्टार्टेड गिविंग ट्रांसफरिंग इट इलेक्ट्रॉन. जिंक अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने लगेगा और Zn+2 में कन्वर्ट हो जाएगा. एंड दीज टू इलेक्ट्रॉन्स विच जिंक इज गिविंग,
इट्स टेकन बाय कॉपर. ये कौन ले लेगा? कॉपर ले लेगा. तो क्या प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी व्हेन वी क्रिएटेड दिस सिस्टम? So the process started that zinc started giving its electron and copper starting accepting it. This will take place. Okay? अब क्या होगा? C. अब क्या होगा? This reaction will take place. Zn plus CuSO4 equals to ZnSO4 plus Cu means देखो somewhere this is displacement reaction, isn't it? है कि नहीं? Zn इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है Cu से ज़्यादा, तो वो Cu को हटाकर खुद अपनी उसकी जगह ले लेगा. ओके, सो व्हाट इज गोइंग ऑन? Zn इज गिविंग इट्स टू इलेक्ट्रॉन प्लस 2 charge and this 2 charge will be taken by copper. Yes, you can see here Zn is not having any positive sign, but here it is having plus 2 charge, है ना. ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है. नाउ अब अभी मैम आप हमें टर्म समझा रहे थे. आई एम टेलिंग यू स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस टर्म, कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो ये कैसे हो रहा है? व्हेन दिस सिस्टम, ये वाला जो सिस्टम मैंने पीछे बनाया है, व्हेन दिस सिस्टम स्टार्ट वर्किंग, ये अपने आप जब स्टार्ट करने लगता है, वर्क करने लगता है, इट्स नॉट नीड एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एंड एनर्जी. अंदर बाहर से कोई एनर्जी और फोर्स की ज़रूरत नहीं है. दैट इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. तो जब इसमें अपने आप स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होने लगती है तो ऑटोमेटिकली केमिकल एनर्जी चेंज इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी. केमिकल एनर्जी कौन सी? रिएक्शंस होगी तो उन रिएक्शंस में 2 टाइप की होती हैं, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक. एक्सोथर्मिक में रिएक्शन एनर्जी क्या होती है? रिलीज. तो दैट इज केमिकल एनर्जी विच इज रिलीजिंग एंड दिस एनर्जी ओनली विल बी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अब कितने अमाउंट में एनर्जी वो दे रही है, हाउ मच एनर्जी इज दैट, दैट इज कॉल्ड पोटेशियम या फिर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अंडरस्टूड? ओके, बट इफ़ वी टेक द थिंग्स इन प्रॉपर रेशियो, अगर हम प्रॉपर रेशियो में लेते हैं, लाइक आई हैव टेकन 1 molar of ZnSO4, 1 molar of CuSO4 and temperature 298 Kelvin. So what happened? This will give proper amount of energy, that is 1.1 volt. So as a practical we can assume it, and as a practical we can learn that how chemical energy change into electrical energy and how electrical energy change into chemical energy. या फिर ये भी बोल सकते हो कि इन्वर्टर कैसे चार्ज होता है और कैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, उसे भी देख सकते हैं. नाउ देयर आर 3 टर्म्स, 3 टर्म हैं. दैट इज एक्सटर्नल पोटेंशियल इज लेस दैन 1.1 वोल्ट. अब दिस इज द 1 वोल्ट इज ऑफ बैटरी. बैटरी के अंदर जो पोटेंशियल है ना, बैटरी के अंदर जो केमिकल एनर्जी है ना, दैट इज इट. लेकिन बट वी आर नॉट गिविंग एनी एक्सटर्नल पोटेंशियल, मीन्स हम बैटरी को कोई भी अलग से चार्ज या इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे रहे हैं या करंट फ्लो नहीं करा रहे, अलग से एनर्जी फोर्स नहीं दे रहे हैं. इट मीन्स दैट इज 0. तो जब ये लेस देन है 1.1 वोल्ट से, तो व्हाट हैपन, व्हाट विल टेक प्लेस? द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम जिंक टेक प्लेस. जिंक से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे कॉपर की तरफ एंड इट विल कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और करंट का फ्लो कॉपर से जिंक की तरफ होता रहेगा. बट इफ व्हाट हैपन दैट एक्सटर्नल फोर्स, जब हमने उसमें फोर्स लगाना स्टार्ट किया और वो जो एक्सटर्नल फोर्स है वो हमारी बैटरी के पोटेंशियल 1.1 के बराबर हो गया, तब क्या होगा? सब कुछ स्टॉप हो जाएगा, नो फ्लो ऑफ चार्जेस, कोई फ्लो नहीं करेंगे. बट इन द कंडीशन व्हेन एक्सटर्नल पोटेंशियल इज ग्रेटर दैन
1.1 वोल्ट, जैसे ही एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से ज़्यादा होता है तब ये रिवर्स रिएक्शन होने लगती है, यानी कि कॉपर से इलेक्ट्रॉन लूज होकर जिंक की तरफ जाने लगते हैं एंड करंट फ्लो विल टेक प्लेस फ्रॉम जिंक टू copper, and this is called the electrical energy conversion into chemical energy. Now how inverter work in it? अब जब समझो आपकी जो बैटरी है, द बैटरी एट योर होम, जो इन्वर्टर की बैटरी है उसके अंदर जो केमिकल्स फिल्ड हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, अभी लाइट नहीं आ रही है, ठीक है, इसमें जो केमिकल फिक्स हैं दे आर डूइंग रिएक्शंस, यानी कि इसमें वही है रहा है, Zn अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है और कॉपर उससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है. This is going on. So they are releasing some energy, chemical energy they are releasing. So this energy will be converted. लेकिन ये एनर्जी का वोल्ट क्या है, इस एनर्जी का वोल्ट क्या है, 1.1 वोल्ट है. लेकिन when electricity came, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी आएगी इस बैटरी के अंदर करंट आएगा और वो करंट किससे ज़्यादा होगा, 1.1 वोल्ट से ज़्यादा होगा. और जैसे ही 1.1 वोल्ट से ज़्यादा हो जाएगा तब क्या होने लगेगा, इसके अंदर ही बैटरी के अंदर जो केमिकल एनर्जी, यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो मिलेगी इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दी जाएगी. ओके, विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास. टिल देन टेक केयर, कीप प्रिपेयरिंग नोट्स and stay safe at home. Thank you.